and very good afternoon to all of you. I am Dr. Muhammad Iqbal Rathir, spokesperson JKCCTA. We are here to deliberate on an issue that is directly pertaining to the contractual faculty which is working in the different colleges of. हम यहाँ पे असल में यहाँ पे हम आए हैं, जो हमारे मसाइल है कॉलेज कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स के जो यूटी के मुख्तलिफ़ कॉलेजों में काम कर रहे हैं, चाहे लेक्चरर पोस्ट पे कर रहे हैं या टीचिंग असिस्टेंट्स के पोस्ट पे काम कर रहे हैं। असल में हम यहाँ पे जमा इसलिए हुए हैं कि हमारे साथ जो इस्तेहसाल हुआ है पिछले 2 दहाइयों से, जो हमारे हुकूक हमसे छीने गए हैं, जो हमारे हुकूक थे हमें नहीं दिए गए हैं, उन हुकूक को पाने के लिए हमने आप सबको यहाँ पे मदऊ किया है और उम्मीद है कि आप ये बात आला हुकाम तक पहुँचाएंगे इंशाअल्लाह। आई वुड लाइक टू deliberate on this issue in English. We, the college contractual lecturers, have been subjected to the utmost humiliation by the Department of Higher Education of erstwhile state of Jammu and Kashmir, now Union Territory. It is we, the academic arrangement candidates working in the different colleges of Jammu and Kashmir UT, who have kept the skeleton of higher education alive. We have always worked at par with the permanent faculty wherever available. The term wherever available here, मैं आपको यहाँ पे इसकी वजाहत करना चाहूँगा, वो ये है कि कॉलेजेस में अभी तक जो पीएससी के थ्रू परमानेंट लेक्चरर्स आते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर्स आते हैं, उनकी असामियाँ अभी तक पूरी नहीं की गई है। तकरीबन जो हमारे पास डाटा है हायर एजुकेशन की तरफ से 5000 से 8000 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की असामियाँ अभी भी खाली है, मगर जो लेक्चरर्स और असिस्टेंट लेक्चरर्स एकेडमिक अरेंजमेंट बेसिस पे काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट में पिछले 20-25 सालों से, उनको अभी तक उन असामी पे अपॉइंट नहीं किया गया है जो हमारे साथ वादे किए गए थे। Despite the above mentioned facts, the department has never paid any attention to address our genuine demand, that is regularization and job policy, which is our due right. The department has or is hell-bent to ruin our future, to ruin the future of this highly qualified lot, as most of the candidates working in the system have crossed the upper age limit or are at the verge of turning to be highly qualified, overaged, unemployed youth of the democracy. This is shameful that highly qualified lot of the democracy of this Union Territory, that we are with PhDs, we are with JRF, we are with NET, we are with highest qualifications, postdocs, and we are subjected to this humiliation. We are not being given our right, what is our what fundamental, what our constitution has guaranteed us. I would like to mention here that in 2010 Special Services Provisional Act 2010 was passed, and we were assured that you will be included, academic arrangement faculty or contractual faculty will be included, of higher education will be included in the act. But unfortunately, due to a deliberate attempt by the authorities, in 2009 academic arrangement, our nomenclature, जो हमारा जो नाम है वो कॉन्ट्रैक्चुअल था, और 2009 में उस कॉन्ट्रैक्चुअल को चेंज करके एकेडमिक अरेंजमेंट कर दिया गया डिलिबरेटली, ताकि हम इनको इस 2010 स्पेशल सर्विसेज एक्ट में न लाए और इनको इनके हुकूक से पामाल किया जाए। Back in 2011, we were on about 2 months hunger strike in Srinagar. As I mentioned earlier, that almost all the colleges in UT are being run by contractual faculty, academic arrangement candidates. And during the strike, the academics in the colleges was badly hit
by our strike, by our not being available in the colleges. So the Commissioner Secretary of then Commissioner Secretary of Higher Education, Madam Tanveer Jahan, called a representation from we people to the Secretariat and to negotiate on the things. We can take a positive path, how we can address this issue, how we can deliberate on this issue. So round of talks were held, but unfortunately still that time, from that time till today, our genuine demands have never been met. During that time, Mr. Omar Abdullah, were the Chief Minister of the erstwhile state, he sent his two senior party ministers, Mr. Mustafa Kamal and Mr. Ghulam Hassan Mir, and they both of them assured us a job policy and reservation in the quota PSC reservation in the quota which was being referred to PSC through different through higher education. But when in 2014 the posts were advertised and there was no reservation for the internal candidates which were working in the higher education department in form of academic arrangements or contractuals. When we talk of this deceit, when we talk of this disuniformity, इस सब के बावजूद जब हमें लगा कि हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है, तो हमारे पास एक ही रास्ता बचा था हमारे हुकूक को पाने के लिए, वो था कोर्ट. एंड वी मूव टू द कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. आफ्टर एनालाइजिंग आवर पिटिशंस, उन्होंने हमें स्टेट्स को दिया एंड स्टेट्स को में ये आर्डर आया कि इनकी पोजीशंस को तब तक डिस्टर्ब न किया जाए जब तक कि पूरे केस को डिस्पोज ऑफ न किया जाए. मगर जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के आला हुकाम है, उन्होंने उन डायरेक्शंस और उन जजमेंट्स की कभी भी कोई भी तामील नहीं की और उन्होंने उनको हर वक्त ठुकराते रहे उन डायरेक्शंस को. और उसकी मिसाल मैं आपको एक छोटी सी मिसाल यहाँ पे ये दूंगा कि हम एकेडमिक अरेंजमेंट कैंडिडेट्स में से 1200 लड़के स्टेट्स को कोर्ट ऑर्डर्स पे काम कर रहे हैं डिफरेंट कॉलेजेस में, और जम्मू में भी, जम्मू एंड कश्मीर में. और जम्मू में कैट जो वहाँ से जो रिसेंटली एस्टेब्लिश हुआ है, उन्होंने ऑर्डर्स दिए हैं उनको, वहाँ पे उनके हक में स्टेट्स को इशू किया है. मगर हाई हैंडेडनेस डिपार्टमेंट की आपको इस तरीके से पता चलेगी कि रिसेंटली जो लड़के कोर्ट ऑर्डर्स पे काम करते थे उनको डिपार्टमेंट से दरवाज़ा दिखाया गया, बाहर का दरवाज़ा दिखाया गया, क्योंकि उन्होंने एक नया एक रास्ता खोला कि जो सरप्लस के नाम से हम जानते हैं, क्योंकि आपके लिए अभी काम नहीं है, जब हमारे पास काम होगा हम आपको बुलाएंगे. वी आर नॉट यूज एंड वी आर नॉट टिश्यू पेपर्स दैट दे विल यूज अस एट देयर विल. जैसे कि बाहर हम बहुत बार इनके पास गए, उन्होंने कहा कि हम आपके लिए पॉलिसी बनाएंगे, मगर फिर जब लास्ट पे हमारी फाइल पहुंचती थी तो तब कहते थे कि यूजीसी में कोई प्रोविजन इसके लिए है नहीं. मेरे पास तकरीबन 20 या 25 डॉक्यूमेंट्स है डिफरेंट स्टेट्स के, जो हमें ये दिखाता है कि कैसे मुख्तलिफ रियासतों ने या मुख्तलिफ यूनियन टेरिटरीज़ ने एकेडमिक अरेंजमेंट कैंडिडेट्स को रेगुलराइज किया. ये ऑर्डर रिसेंटली फरवरी या मार्च में पास हुआ है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट से. ये हमारे ज़रिए से ये है. You mean to say there is a sheer discrimination? There is a sheer discrimination. ये है हिमाचल प्रदेश का इक्वल पे इक्वल वर्क, यानी कि जब आप काम कर रहे हैं कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर परमानेंट होते हैं और हम होते हैं, हम मियर 22,000 पे काम करते हैं, 28,000 पे काम करते हैं, जबकि वहाँ पे परमानेंट फैकल्टी जो होती है वो 60, 70, 80,000, जो न्यूली अपॉइंटेड असिस्टेंट प्रोफेसर होता है वो 80,000 सैलरी लेता है, और क्लासेस हमारे सेम होते हैं, जो काम कॉलेज में होता है वो सेम होता है, जो वो करते हैं वो हम भी करते हैं. ये है 2010 स्पेशल प्रोविजंस एक्ट, एड हॉक डॉक्टर्स को अपॉइंट किया गया, रेगुलराइज किया गया. ये है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों को अपॉइंट किया गया गैजेटेड पोस्ट्स पे. यह है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स के कैंडिडेट्स को अपॉइंट किया गया गैजेटेड पोस्ट्स पे. हम जो आला हुकाम से गुजारिश करते हैं वो ये है कि हमारे साथ ये शीर डिस्क्रिमिनेशन क्यों? अगर हमने पढ़ा ना होता, मेरिटोरियस ना होते,
अगर हम बैकडोर एंट्री से आते, हमारे लिए हमारी सिलेक्शन जो होती है वो थ्रू प्रॉपर चैनल होती है, हमें फॉर्म्स भरने पड़ते हैं, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनता है, क्वालिफिकेशन देखी जाती है, एलिजिबिलिटी देखी जाती है, उसके बाद हमें सिस्टम में लाया जाता है। अगर हम इस प्रोसेस के थ्रू आते हैं, जब इन सारे डिपार्टमेंट्स के लोगों को, इन सारे लोगों के लिए गवर्नमेंट ने कोई प्रोविज़न सोचा था, तो हमारे लिए वो के प्रोविज़न क्यों नहीं सोच सकते हैं। ये है हमारे पैटर्न डॉक्टर फयाज साहब, ही इज़ अबाउट 53-54 ईयर्स ओल्ड राइट नाउ। अब 25 साल सर्विस दे के हायर एजुकेशन के सिस्टम को ये कहाँ जाएंगे। दिस इज़ द एपेज 3 और इनको अभी सिस्टम से बाहर रखा गया है। 25 साल काम करने के बावजूद इन्हें कहा गया है कि आप सरप्लस हो, आपके लिए अभी कॉलेज में काम है नहीं। दिस इज़ द शेमफुल एक्ट ऑफ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट विच दे आर यूजिंग टू humiliate us, which they are using to torture us, which they are using to mentally harass us people. Now, through you people, I would like to Governor, His Excellency Manoj Sinha, worthy advisor, higher education, Shri K.K. Sharma sir, and all the concerned authorities to take personal interest in resolving this grave and long pending issue once for all, and continue our services without any disturbance and interruption, just like those of medical education department academic arrangement candidates, till the government comes up with a concrete roadmap and job policy. And it is requested that the pending salaries, एक बात मैं यहाँ पे आपको बताना भूल गया, वो ये है कि 1 अगस्त 2019 से लेकर मार्च 2020 तक हम लोगों को एक भी रुपया तनख्वाह का नहीं दिया गया, और ये हमारे लिए यूटी का बहुत ही बड़ा गिफ्ट था। और हम आपकी वसातत से गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि प्लीज़ स्पेशली एलजी सर कि इस मसले में आप खुद ध्यान दें, खुद गौर खोज करें, और हमारी जो पेंडिंग सैलरीज़ है वो एट अर्लीस्ट रिलीज़ की जाए, और ये जो हमारा जेन्युइन इशू है इसको एड्रेस किया जाए। एंड हियर आई वुड लाइक टू आल्सो 20-25 सालों से जो लॉन्ग पेंडिंग इशू है कॉलेज कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स का, ये मसला हल किया जाए। हमारे लिए एक कॉम्प्रहेंसिव जॉब पॉलिसी, रेगुलराइजेशन पॉलिसी लाई जाए, जिसमें जो भी सिस्टम में लड़के काम कर रहे हैं उनके लिए कोई ना कोई रोड मैप तैयार किया जाए, उनको सिस्टम में एब्जॉर्ब किया जाए, और तब तक जब तक गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है तब तक हमारी सर्विसेज को अनडिस्टर्ब्ड कंटिन्यू किया जाए, और हमारी जो पेंडिंग सैलरीज़ है उन सैलरीज़ को जल्द अज जल्द रिलीज़ किया जाए। और जो मसला है जिन कॉलेज